Water is impossible to survive in this world. For daily survival, the human body requires water. Water is important for day-to-day activities like watering plants, bathing, cleaning, washing, cooking, etc. Without water, we will die. 70% surface of our planet is covered with water. But all this water is not fit for daily life use. Only a very small of all water is usable. We got water from river, lakes, oceans, etc. But humans are polluting all their water bodies at a great level. So we need to understand the importance of water. We must use water very carefully. We also need to spread awareness to save water. Thanks. Have a nice day. Respected principal sir, worthy teachers and my brothers and sisters, good morning to all of you. Today I want to ask you some GK questions. Who invented the first car? पहली कार किसने बनाई थी? Right answer, Karl Benz. Who was Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Right answer, Jawaharlal Nehru. Who was the first President of India? Right answer, Rajendra Prasad. Which team won the first Cricket World Cup? Which team won the first Cricket World Cup? Wrong answer, West Indies. सबसे पहला Final World Cup of 2023. Australia. Right answer, Australia. Thanks, have a nice day. Now I would like to invite Sobia from class 7 for topic on importance of forest. Today my topic is importance of forest. Forest provides the house for many living beings. Thus it is one of the precious resources provided by the nature to human beings. Also the organisms that live in forest are independent of each other. Life in forest is run by various factors like air, water and sunlight. Also there are a variety of plants that are available in forest. Besides this, various trees, shrubs and herbs depend on the climate of the forest. Also there are plants that rely on animals for processes like seed dispersal and pollination. Forests further are classified into evergreen, partly evergreen, tropical, dry and deciduous forests. Also these forests are based on the climatic conditions and the type of trees present in the forest. Also forests comprise of the non-living components like lakes, soil, rocks, ponds, etc. Forests are a resource to humankind that just keeps on giving. Forest is a great help to mankind and there are benefits of forest. Thanks, have a nice day. Bhaiya from class 2nd. Neeraj from class 1st for poem. उड़ ना सकी बस में चढ़ी सीट न मिली रोने लगी ड्राइवर ने बोला आज मेरे पास तितली बोली हट बट आज मेरे पास Have a nice day. जिसका नाम टिमोथी होता है वो एक दादाजी के पास होता है उसके घर में और उसके पास 2 और पेट्स होते हैं, एक डॉग और एक मंकी। जब वो टाइगर छोटा था तो वो उन दूसरे जो उनके 2 पेट्स थे उनके साथ खेलता था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ 6 महीने का हुआ तो उस दादाजी को एक बार सपना आया जो उनका कुक था जो उनके लिए खाना बनाता था वो जो टाइगर है उसको मतलब वो जो टाइगर था उस कुक के साथ रहता था, वो टाइगर उस कुक को एक दिन खाएगा। तो उस दादाजी ने ये फैसला किया कि वो उसको जू में रखेंगे और उन्होंने उसको जू में रखा। जब वो 6 महीने बाद उससे मिलने गए तो उन्होंने उसको उस पिंजरे में जाके उसके साथ खेलने लगे, लेकिन जब उनको सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उनका टाइगर 2 महीने पहले मर चुका है और वो जिस टाइगर के साथ खेल रहे थे वो बहुत डेंजरस था। थैंक यू। और ये रूरल और अर्बन, रूरल होता है विलेज और अर्बन होता है शहर। थैंक यू। थैंक यू। ये इम्पोर्टेंट। हमने टी2 में एक चैप्टर पढ़ा था स्नो वाइट एंड द साउंड ड्राफ्ट। उसमें एक राजा होता है जो कि एक बहुत बड़ी कंट्री पे राज करते हैं और
उनको सिर्फ एक ही दुख होता है क्योंकि उनका बच्चा नहीं होता है, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका एक बच्चा हो, और भगवान उनकी प्रार्थना मानता है। और उनको एक लड़की होती है, रानी ने एक लड़की को जन्म दिया जिसके होंठ गुलाबी होते हैं और जिसकी स्किन बर्फ की तरह सफ़ेद होती है, इसलिए उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा और उसको अपनी आंखों से कभी दूर नहीं रखा। लेकिन जब ही उस लड़की को उसकी माँ जन्म देती है तो उसकी माँ मर जाती है। उसके लड़की के जो राजा था उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जिस रानी के साथ दूसरी शादी की वो एक पुरानी चुड़ैल थी और उसका एक जादुई शीशा था। उसने एक बार उससे सवाल पूछा कि हम सब में से खूबसूरत कौन है, तो उसने कहा कि आप सबसे खूबसूरत हो लेकिन स्नो वाइट के आगे कुछ भी नहीं। तो उसने अपने नौकर से कहा कि इसको जंगल में जाके मार दो, तो नौकर ने जंगल में लिया उसको, लेकिन उसको बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और उसको उधर ही छोड़ दिया। वो उधर आराम करने के लिए उसको एक झोंपड़ी मिली जिसमें वो आराम करने के लिए चले गई। उस झोंपड़ी में 7 ड्राफ्ट्स रहते थे जो कि शाम को घर आए। उससे पूछा कि आप इधर क्या हो, उसने सब कुछ बताया और उन ड्राफ्ट्स ने कहा कि तुम यहीं बैठो, दोबारा उधर मत जाओ। फिर रानी जो थी उसने दोबारा अपने मिरर से पूछा कि हम सब में से खूबसूरत कौन है, तो उसने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत स्नो वाइट है। तो उसने जो उसका नौकर था उसको फांसी दे दी कि तूने उसको मारा क्यों नहीं, और वो खुद एक बार गई उधर चूड़ियाँ लेके, रिबन्स लेके उसको मारने के लिए, और उसको एक रिबन वो आई बाहर स्नो वाइट और उसको एक रिबन पहनाया और उसको इतना टाइट किया कि वो बेहोश पड़ गई। जब शाम को ड्राफ्ट घर आए तो उन्होंने कैंची से काटा और वो फिर से ठीक हो गई। जब वो फिर से रानी गई महल में तो फिर से वो शीशा कहने लगा कि हम सब खूबसूरत है लेकिन हम सब में से खूबसूरत स्नो वाइट है। तो रानी दोबारा गई उधर मरने के जहर लेके सेब में, तो उसने शीशे में रखा, नहीं शीशे में रखे वो सेब तो खुद को पेड़ के पीछे छुप गई, और जब उसने स्नो वाइट को बाइट देने वाली थी तब तक वो बेहोश पड़ गई। अंत में जब वो मर गई तो ड्राफ्ट्स ने उसको ऐसे ही रखा, वो उसको दफनाना नहीं चाहते थे, उन्होंने ऐसे ही रखा। जब एक प्रिंस उधर से गुजर रहा था तो उसने अपने नौकर बुलवाए और कहा कि इसको हमें दे दो, तो उन्होंने राजी मान गए कि ठीक है ले लो तो उसको लाने लगे। रास्ते में वो जो स्नो वाइट गिर गई एक पत्थर पे और जो उसको गले में वो बाइट दी थी उसने वो बाहर निकल गया सेब, और वो फिर से ठीक हो गई और उसने प्रिंस के साथ शादी कर दी। थैंक यू। कैसे सभी बच्चों को प्रिपेयर करके आना है, ठीक है, तो जिस किसी की भी डर ना आ सकती है। थैंक यू सो मच।